নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন জাতির উদ্দেশ্যে এবং সেখান থেকেই চারটে পয়েন্ট বেরিয়ে এলো এবং সেই চারটে পয়েন্টকে নিয়ে একই দিনে কপিল সিব্বল, তিনি রাজ্যসভার সাংসদ এবং অবশ্যই তার সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ লয়ার, এই মুহূর্তে অবশ্যই তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং সেই প্রেস কনফারেন্সটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্তে। তার কারণ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটচিত্রটা বদলে গিয়েছে। গত 2 মাস আগে যখন পশ্চিমবঙ্গ জয় হলো, যখন আসাম জয় হলো, সেই দিনকার সময় 4 মে ভারতীয় জনতা পার্টি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, আজকে আর তারা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এবং 4 মে সামগ্রিক বিরোধী জোট যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিল, আজকে আর তারা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। তাদের সংখ্যা হয়তো কমেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএ এর পক্ষে সংখ্যা হয়তো বেড়েছে, কিন্তু অবশ্যই বিরোধী শক্তি কিন্তু অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিরোধী শক্তি সামগ্রিকভাবে কিন্তু একটা প্রভাব ফেলেছে সাধারণ মানুষের মনে। সেটাও এই মুহূর্তে বলে দেওয়া যায়। সেটা ভোটের রাজনীতিতে কতটা ম্যাটার করবে আমরা যাচ্ছি না সেদিকে, কিন্তু অবশ্যই বিরোধী শক্তি এই মুহূর্তে কিন্তু দমন করলো সামগ্রিক যে বাদল অধিবেশনটা, সেই ক্ষেত্রে তারা ডমিনেট করলো একদম সরাসরি। এবং সেই জন্য আমরা দেখতে পেলাম দেশের প্রধানমন্ত্রী, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলেন না, সংসদে দাঁড়িয়ে একটা কথা তারা বললেন না। 20শে জুলাই থেকে 13ই আগস্ট পর্যন্ত চলা বাদল অধিবেশন একটা অদ্ভুত অধিবেশনের সাক্ষী আমরা থাকলাম, যেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী বা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা একটা টু শব্দ শুনলাম না। বিভিন্ন বিষয় ছিল, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে সরাসরি চারটে মূল পয়েন্ট দেশের প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি এবং সেই চারটে পয়েন্টকে নিয়ে একদম সরাসরি কপিল সিব্বল বক্তব্য রেখেছেন। চারটে পয়েন্ট কি কি? প্রাথমিকভাবে তিনি বলছেন যে এই মুহূর্তে মানসিকভাবে নকশাল, অর্থাৎ দিমাগে নকশাল, এই কথাটা তিনি ব্যবহার করেছেন এবং সেইটা বহু অংশের মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটা তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবেই বলেছেন এবং সেটা কপিল সিব্বল কি বলছেন সেই নিয়ে আপনারা শুনবেন। অবশ্যই কপিল সিব্বলের বক্তব্য যারা শিক্ষিত মানুষ কিংবা যারা ছাত্র, পড়াশোনা করেছে, যারা ইন্টেলেকচুয়াল, তাদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের কথা বলছেন তিনি। তার কারণ তারা সেই মতের সঙ্গে সহমত নয় যে মতে এই মুহূর্তে শাসক দল চলছে। এটা কপিল সিব্বলের বক্তব্য। তার পরবর্তীতে উইমেন রিজার্ভেশন বিল, সেটা পাশ করানোর জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী বলছেন আমাদের এই মুহূর্তে বিরোধীদের সহায়তা চাই। তো সেই ক্ষেত্রে কপিল সিব্বলের বক্তব্য যে একদম উইমেন রিজার্ভেশন বিল তো আমরা পাশ করিয়ে দিয়েছি অলরেডি। উইমেন রিজার্ভেশন বিল 2023 সালের ডিসেম্বর মাসে পাশ হয়ে গিয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি অবশ্যই সেটাকেও উদযাপন করেছিল এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে মহিলা তৎকালীন সময় যারা যারা সাংসদ ছিলেন, তৎকালীন সময় লকেট চট্টোপাধ্যায়, আমাদের মনে আছে লকেট চট্টোপাধ্যায় 19 সালে জিতেছিলেন, যেহেতু 2023 সালে তিনিও ছিলেন সেই উদযাপনে। মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয়ে গিয়েছিল। তো এই কপিল সিব্বলের এই মুহূর্তে বক্তব্য যে 543 জন যে রয়েছে তার মধ্যেই আপনি 33% মহিলাদের দিন না, তাতে তো কারোর কোনো অসুবিধা নেই, কারণ সেই বিল তো পাশ হয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে 543-এর মধ্যে 33% আপনি লাগু করুন, তাতে সবাই সমর্থন করছে। কিন্তু মহিলা সংরক্ষণের নামে ডিলিমিটেশন করা এবং সেই ডিলিমিটেশনটা আপনাদের ইচ্ছা মতন করা, যে যে রাজ্যে যে ধরনের ঘনত্ব রয়েছে, জনঘনত্ব, সেই রাজ্য অনুযায়ী তেমন ভাবে সিটগুলো বৃদ্ধি পাবে, এইটা যদি হয় তাহলে তো অবশ্যই একটা সমস্যা তৈরি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের জেতার যে পথটা সেটা আরো প্রশস্ত করছে। সেটা কখনোই আমরা করতে দেব না। কপিল সিব্বলের বক্তব্য এই নিয়ে রয়েছে, আপনারা শুনুন। এবং তার পরবর্তীতে যুবদের বলছেন যে ভোটার লিস্ট বানাতে হেল্প করতে, এইটা নিয়ে একটা বক্তব্য কপিল সিব্বলের রয়েছে এবং তার পরবর্তীতে সেলফ ইন্টারেস্টের থেকে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে বড় করে দেখতে বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সেটাকে নিয়েও অবশ্যই কিন্তু কাটাছেড়া করেছেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণভাবে কপিল সিব্বল চারটে পয়েন্ট যে তুলে ধরেছেন সেটার ভিত্তিতে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটচিত্রটা কিভাবে বদলেছে এবং এই চারটে পয়েন্ট দেশের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে কেন উঠে এলো লালকেল্লায়, এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এই চারটে পয়েন্ট, এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ এই মুহূর্তে একদম সংসদীয় রাজনীতিতে এই চারটে পয়েন্ট। আপনারা শুনুন, একদম প্রত্যেকটা পয়েন্ট শুনবেন এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। যুব সমাজের আন্দোলন কোথাও যে গিয়ে যে এই মুহূর্তে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারকে নড়িয়ে দিয়েছে, তাদের নতুন ভাবে ভাবতে বাধ্য করছে, সমস্তটা নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। সেসব দিয়ে কাইন্ডলি দেখুন কপিল সিব্বলের বক্তব্য এবং অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने इस देश को कहा है कि बहुत ही अहम मुद्दे हैं, तो उनके बारे में पहले बात करूंगा। वो 4 मुद्दे हैं क्या? एक तो है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कई दिमागी नक्सल हैं, पहले तो उस पर बात करेंगे।
फिर उन्होंने कहा है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल पारित होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उन्होंने युवाओं से अपील की है कि आप वोटर लिस्ट बनाने में हमें मदद कीजिए। और फिर उन्होंने कहा है कि इस देश में जो सेल्फ इंटरेस्ट की पहल नहीं होनी चाहिए, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये 4 खास मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि आज के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, प्रधानमंत्री जी उस मंच पे ऐसी बात कहें जो सारा विश्व सुन रहा है। इस देश में दिमागी नक्सल है और इनका इशारा तो साफ जाहिर है, युवाओं पे है। इनका इशारा उन लोगों पे है जो इनकी नीतियों से सहमति नहीं रखते, उन लोगों पे है जो एकेडमिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डिसेंटर्स हैं। उनको ये कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है। अब ये भूल गए एक बात कि जो युवा हैं इस देश के और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस देश के, इस बात को वो समझ गए हैं कि इस देश में 3 किस्म के तानाशाह हैं। एक तो सरकारी तानाशाह, उसमें ईडी हो गया, उसमें सीबीआई हो गया, उसमें इलेक्शन कमीशन हो गया, उसमें कुछ ऐसे वाइस चांसलर्स हो गए, कुछ गवर्नर्स हो गए जो सरकार के इशारों में चलते हैं। और मैं समझता हूं ये जो प्राइवेट चैनल्स हैं, क्योंकि ये सरकारी एडवर्टाइजमेंट से ही चलते हैं, तो ये भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जनता पहचान चुकी है कि सरकारी तानाशाह से इस देश में कभी वो प्रगति नहीं हो सकती और ना कभी विकसित भारत बन सकता है। और दूसरे किस्म के लोग हैं सामाजिक तानाशाह। इनके वो बजरंग दल हो गया, इनका वीएचपी हो गया, घर घर में जाकर लोगों को तंग करना, बोलना तुम बोलो ये बात, बोलना तुम ये नहीं खाओ, बोलना तुम ये हमें सुनाओ, ये गाना गाओ, ऐसा करो वैसा करो, मतलब कि खलचल मना रखी है। उसमें आपके एबीवीपी भी लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटीज में घुस जाते हैं। तो पहले तो सरकारी तानाशाह, फिर सामाजिक तानाशाह और तीसरी पैदाशी तानाशाह। तो हम भी जानते हैं कि पैदाशी तानाशाह कौन है। युवा जानता है, देश की जनता जानती है, सिविल सोसाइटी जानती है, और उनके जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पैदाशी तानाशाह जो हैं, हमारे देश की जनता उनको अब टॉलरेट नहीं करेगी। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, खासतौर पे लाल किले। पहली बात तो ये। दूसरी बात, विमेंस रिजर्वेशन। विमेंस रिजर्वेशन तो पास हो चुका है। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं कि आप हमें, विपक्ष को साथ देना चाहिए विमेंस रिजर्वेशन लागू करने का। हम तो साथ दे चुके हैं, हम तो पारित कर चुके हैं। तो इसी लोकसभा में आप एक 33% दीजिए ना, 33% रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? कल ही पास हो जाएगा, हो जाता, इसी सत्र में हो जाता। लेकिन आपकी मंशा कुछ और है, और मैं बताता हूं देशवासियों के मंशा क्या है। इस बार तो आपने भाई और बहनों बोला नहीं, प्रधानमंत्री जी। मैं तो सोच रहा था कि कब बोलेंगे आप। इस बार आपने मतलब अपना लहजा ही बदल दिया आपने। मेरे प्यारे देशवासी, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए, मतलब कि सोच का बदलाव भी होना चाहिए, जो बोलने का लहजा है उसमें भी बदलाव होना चाहिए, और जिस तरह से आप देश चला रहे हैं उसमें भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए। लेकिन छोड़िए इस बात को। तो विमेन रिजर्वेशन आप क्यों नहीं पास करते? इसलिए नहीं पास करते क्योंकि आप चाहते हो कि जब तक आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल ना जाए, तब आप क्या करोगे? तब आप विमेन्स रिजर्वेशन पास करके डीलिमिटेशन करवाओगे। और डीलिमिटेशन के द्वारा, जिस तरह से आपने असम में किया था कंस्टिट्यूएंसीज का, जो जिसको हम
जेरीमैंडरिंग बोलते हैं कि अपने समझ के साथ एक कंस्टिट्यूएंसी की कॉन्ट्रोवर्स बनाओगे और उसके द्वारा फिर आप इलेक्शन कराओगे, और एक बार 2/3 हो गया तो आप संविधान भी बदल दोगे। इसलिए आप विमेन्स रिजर्वेशन अब पारित नहीं करना चाहते। आपकी मंशा है, ये है जेरीमैंडरिंग कराओ, संविधान बदलो और ऐसी सिचुएशन लाओ देश में कि हमारा जो संविधान है वो भी बदल जाए। ये हम होने नहीं देंगे। देश की जनता जानती है कि आपका असली मकसद क्या है। आपका मकसद ये नहीं है कि आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल पास करो, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर करना चाहते तो इस तरह से जो जंतर मंतर में हुआ था, आपकी सरकार कभी ऐसे नहीं करती। जिस तरह से हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह से उनको मारा गया और जिस तरीके से मारा गया, ये बात मैं आज नहीं कहना चाहता, लेकिन आप जानते हो और आपके कमिश्नर जानते हैं और आपके गृह मंत्री जानते हैं। इसलिए तो आप सत्र में आए नहीं, ना आप आए तो ना गृह मंत्री आए, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो महिलाओं की बात है वहां कोई इज्जत नहीं है। इज्जत होती तो ऐसा आप कभी नहीं करते। जिस तरह से आपके मंत्रियों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आपने कुछ किया, किसी मंत्री को हटाया? तो ये तो हो गई विमेन्स रिजर्वेशन के बाद विपक्ष तैयार है, आप पारित करो इसको, 1/3 अभी दे दो। तीसरी बात, अपील टू द यूथ। इन्होंने कहा मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं। क्या अपील करना चाहते हैं? कि आप हमें प्रतिदिन 2 घंटा दीजिए और जो एन्यूमरेशन कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसमें आप सहायता कीजिए और आप डिजिटल मोड से अपलोड कीजिए परिवार के नाम, कितने सदस्य हैं, कौन कौन हैं, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पिछले 12 साल में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रही, वोटर लिस्ट में स्पेलिंग मिस्टेक होती रही, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने नाम डिलीट करते रहे, वो नाम डिलीट करते रहे जिनसे उनको वोट नहीं मिलने वाला, इसीलिए आप चुनाव जीतते रहे। तो अब आपको ख्याल आया है 12 साल के बाद कि भैया देखो ऐसा, ये तो युवाओं का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो काम कर नहीं सकता, तो उसको बर्खास्त करो ना। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कि आप खुद ब खुद ये काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन वो तो आपके इशारे पे चलता है। अब चौथी बात, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट बट नेशन फर्स्ट, मतलब कि अपना सेल्फ इंटरेस्ट पीछे हटा दो और देश को प्राथमिकता दो, देश के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दो। तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, देश में प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन आप कर रहे हो ये काम। प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आप 2/3 करना चाहते हो ना पार्लियामेंट में, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट है? आपने 7 MP आपके तोड़ के पंजाब बैठा दिए, आपने TMC के MP तोड़ के 22 वो यहां बैठा दिए, आपने NCP के तोड़े, आपने शिवसेना के तोड़े। तो क्या नेशन फर्स्ट है? कि अपने लिए तोड़े के देश के लिए तोड़े? आपका हर कार्य, आपकी सोच, आपका हर कदम अपने लिए होता है। अपने लिए मतलब आपकी पार्टी के लिए, उन लोगों के लिए, ताकि सत्ता आपके हाथ में रहे। आप देश की प्राथमिकता आपके मन में बहुत दूर है, और 2014 से आज तक कोई आपकी प्राथमिकता देश के प्रति नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, शायद उचित न भी हो। बच्चा जब प्राइमरी स्कूल में जाता है ना, तो 12वीं करके वो ग्रेजुएट हो जाता है। तो आपकी पार्टी आज के दिन और आप आज के दिन प्राइमरी